बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, आज जो है हम जिस टॉपिक का आगाज़ करेंगे वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और बेसिक फिनोमेना क्या है, व्हाट इज़ ए न्यूक्लियर एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the nuclear power station? A nuclear power plant is like a thermal power station in which the heat source comes from one or more nuclear reactor. Same as in thermal power plant, we have a boiler which provides heat by burning of fuel. Here we have a nuclear reactor which provides the heat. As an conventional thermal power station, the heat is used to generate steam, which drives a steam turbine connected to a generator which produces electricity. Nuclear plants are generally considered base power generating stations which are better suited to constant power output. तो ये जैसे कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ पावर स्टेशन होते हैं जो बेस लोड के लिए होते हैं, यानी कि उनको हम कांस्टेंटली जनरेशन पे रखते हैं और उनकी लोड को कम ज़्यादा नहीं करते, और कुछ होते हैं जो पीक लोड्स के लिए होते हैं जैसे थर्मल पावर स्टेशन, तो उनको जो है हम यूज़ करते हैं पीक आवर्स में और उनकी जो है जनरेशन कैपेसिटी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो बेस में आते हैं और बेस लोड में आते हैं, और इसलिए इनकी जो है पावर कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखी जाती है। तो नाउ वी सी व्हाट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी इन एट विच nuclear reactor work. Nuclear energy is the use of exothermic nuclear process to generate useful heat and electricity. Nuclear energy is one of the cleanest fuel sources, accounting for 70% of all emission-free electricity generated and emitted. No carbon dioxide, sulfur dioxide, or nitrogen oxide. History of nuclear power plant. So we should know the what is the history, how nuclear power plant started to work. Origin: nuclear fission was first experimentally achieved by the Enrico Fermi in 1934 when his team bombarded uranium with neutrons. So fission process was well known in the end of 19th century, but the fission process demonstrated by controlled manner was by the Fermi in 1934. On June 27, 1954, the USSR's Obninsk nuclear power plant became the world's first nuclear power plant to generate electricity for a power grid. तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल तो सेकेंड वर्ल्ड वार में शुरू हुआ था। 1941 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था रिएक्टर का, न्यूक्लियर फिशन का कंट्रोल होके, और उसके बाद एटॉमिक बम की तरफ चले गए अमेरिका, और वहाँ पे जाके उन्होंने एटम बम की डिमोन्स्ट्रेशन की, हिरोशिमा नागासाकी जापान पे हमले किए। लेकिन उस वक्त दुनिया की जो तवज्जो थी वो ज़्यादातर एज ए वेपन न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने की थी। लेकिन फार्मर सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, उसने अपना 1951 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया और 54 में जो कंप्लीट हुआ और दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, जिसका इफ्तिताह 27 जून 1954 को हुआ।
Installed nuclear capacity initially rose relatively quickly, rising from less than 1 gigawatt in 1960 to 100 gigawatt in the late 1970 and 300 gigawatt in the 80s. तो अगर हम देखें तो जो है वो स्पीड जो है उसकी बढ़ती गई न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट की ड्यू टू देयर बेनिफिट्स एंड ये है वो पिक्चर जो दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जिस पे हमने अभी बात की थी सोवियत यूनियन ने बनाया, तो उसकी ये इंट्रेंस की पिक्चर है और अब ये म्यूज़ियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। It was the first civilian nuclear power station in the world. The plant is also known as the Obninsk Atomic Power Station. Construction started on January 1, 1951. Startup was on 1st June 1954 and the first grid connection was made in 26 June 1954. For around 4 years till opening of Siberian nuclear power station, Obninsk remains only nuclear power reactor in the Soviet Union. The power plant remained active until 2002 when it was finally shut down. Now this is the picture of the Shipment Atomic Power Station in Shippingport, Pennsylvania. Was the first commercial reactor in the USA and was opened in the 1957. 1954 में जब सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया तो फिर अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी काम शुरू किया और उन्होंने जो है 1957 में एक शिपिंग पोर्ट के ऊपर जो है ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका ने लगाया। एडवांटेजेस, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। न्यूक्लियर पावर प्लांट डोंट रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्पेस एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट. It does not produce smoke particle to polluting the atmosphere. Nuclear energy is by far the most concentrated form of energy. It is a reliable, it does not depend on the weather. We can control the output. It is relatively easy to control the output. It produces a small volume of waste. What is the disadvantages? Disposal of nuclear waste is a very expensive and serious problem. Decommissioning of nuclear power station is expensive and takes a long time. Although the life of a nuclear power plant is 40 to 50 years, and in some cases it can be go to 60-70 years, but at the end it should be decommissioned, and this is an expensive process and complex problem. Nuclear accident can spread radiation producing particles over a wide area. तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जब फंक्शनल होते हैं, नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके यहाँ रेडिएशंस बहुत कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट जैसे अर्थक्वेक आ जाए, कोई दुश्मन का हमला हो जाए, तो जिससे जो है वो उसकी प्रोटेक्शन लेयर जो है वो मुतासिर हो, तो उस सूरत में जब रेडिएशन फैलेंगी तो वो काफ़ी डिज़ास्ट्रस हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पूरी दुनिया में दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूजन,
फ्यूजन वो प्रोसेस है जो आपने फिजिक्स में इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा कि जब दो छोटे एटम मिल के एक बड़ा एटम बनाएं वो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो सन के ऊपर होने वाला प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो एटम मिल के हीलियम बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड सेकंड इज़ न्यूक्लियर फिशन, जिसके ऊपर अब तक जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो रिलाय कर रहे हैं। इसमें जो है ये होता है कि एक हैवी एटम के ऊपर जो कि फिशनेबल है उसके ऊपर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो वो जो है स्प्लिट होके दो छोटे एलिमेंट बनाता है, एटम बनाता है, और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और ये जो है न्यूक्लियर फिशन की इस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हम कर लें थोड़ी सी। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि दो हाइड्रोजन एटम जो है ख़ास तौर पे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो कि आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जब वो आपस में टकराएंगे तो ड्यूटेरियम में जो है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और ट्रिटियम में जो है एक प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन होते हैं। जब ये आपस में तीन मिलेंगे तो उनमें से दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक न्यूट्रॉन जो है वो इस प्रोसेस से आगे निकलेगा और साथ ही जो है हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये है मैक्रो लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन। The world needs new, cleaner way to supply our increasing energy demand as concerns grow over climate change and declining supplies of fossil fuel. Power station using fusion would have number of advantages. No carbon emission. The only byproduct of fusion reaction are small amount of helium, which is an inert gas that will not add to atmospheric pollution. Abundant fuel deuterium can be extracted from water, and tritium is produced from the lithium which is found in the earth crust. Fuel supplies will be therefore last for millions of years. Energy efficiency: 1 kilogram of fusion fuel can provide the same amount of energy as 10 million kilograms of fossil fuels. No long-lived radioactive waste, only plant components become radioactive, and these will be safe to recycle and dispose for conventional within 100 years. Safety: the small amount of fuel used in fusion device mean that large scale nuclear accident is not possible. तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो कि प्रपोज है, अभी तक इस बात को आप ध्यान में रखें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अभी तक दुनिया में नहीं बना। इसके बनाने के ऊपर काम हो रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई वायबल सलूशन जिसको हम कमर्शियल लेवल पे लेके आए वो अभी तक नहीं बना। लेकिन अगर वो बनेगा तो जो उसके फीचर हमने बताए हैं या जो उसके बेनिफिट बताए हैं वो ये हैं कि ये जो है इसमें जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से भी कम चाहिए, और इसके अंदर जो साइज़ है वो भी कम होगा, और इसकी रेडियो एक्टिविटी भी एज़ कंपेयर टू फिशन प्रोसेस बहुत कम होगी। Fusion power plant should provide a base load supply of large amount of electricity at costs that are estimated to be broadly similar to other energy sources. अब हम बात करेंगे मेन न्यूक्लियर एनर्जी की जो इस वक्त वर्ल्ड में अचीव की जा रही है, वो है फिशन प्रोसेस के ज़रिए। सो न्यूक्लियर फिशन इज़ द मेन
source of energy in nuclear area. Let's see what is a nuclear fission. In nuclear physics and nuclear chemistry, nuclear fission is the either a nuclear reaction or a radioactive decay process in which the nucleus of an atom split into smaller parts. The fission process often produces free neutrons and photons. The photons are in the form of a gamma rays and releases a very large amount of energy even by the energetic standard of radioactive decay. Nuclear fission also can be described as it is a reaction when the nucleus of an atom having captured a neutron split into two or more nuclei and in so doing releases a significant amount of energy as well as more neutrons. These neutrons then go on to split more nuclei and chain reaction take place. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको एक नज़र आएगा कि ये एक हैवी एटम है यूरेनियम U-235 का, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन को हमने रेड कलर से शो किया है और न्यूट्रॉन को हमने ग्रीन कलर से शो किया है। तो जब ये एक न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि इस यूरेनियम की जगह हमें जो है क्रिप्टॉन 92 और बेरिलियम 141 दो न्यूक्लियस मिलेंगे और इसके साथ हमें 2 से 3 न्यूट्रॉन भी मिलेंगे और एनर्जी भी अचीव होगी। और अगर हम इसको देखें कि यही एक न्यूट्रॉन जब बम्बारमेंट हुई 2 बने और इसके साथ 2 से 3 जैसे कि हमने कहा न्यूट्रॉन खारिज होंगे, उनमें से अगर कुछ न्यूट्रॉन जाके आगे फिर किसी न्यूक्लियस पे टकराएंगे, फिर इसी तरह का रिएक्शन होगा और फिर उससे न्यूट्रॉन निकलेंगे और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो यही फिनोमेना जो है वो यूज़ होता है एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम में, जहाँ पे हम ट्रिगर कर देते हैं और फिर कंट्रोल नहीं करते और ये चेन जो है हर लम्हे में बढ़ते बढ़ते वो एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो हर तरफ तबाही फैल जाती है। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर हम कंट्रोल मैनर में करें, इसको कंट्रोल कर रहे हैं और उतने ही न्यूट्रॉन आगे जाके अगले न्यूक्लियस पे टकराएं जितने पिछले लेवल पे टकराए थे, तो इस तरह एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती रहती है और यही फिनोमेना यूज़ होता है न्यूक्लियर फिशन में, जो कि हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म हैं जिनको हम देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज बाय द वे ऑफ फिशन चेन रिएक्शन। In this process, neutron emitted by fissioning nuclei include fission in other fissile or fissionable nuclei. The neutron from these fission induce fission in still other fissile nuclei and so on. जैसे कि हमने कहा ये chain reaction होगा। Such chain reaction can be described quantitatively in terms of the multiplication factor, which is denoted by the symbol K. This is defined as the ratio of the number of fission in one generation divided by the number of fission in the preceding generation। यानी कि इस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन जो हैं वो फिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कितने न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं, और अगले लेवल पे या अगली जनरेशन में जो है वो कितने न्यूट्रॉन ने किया। तो ये जो रेशो है ये कहलाती है के।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको के से हम डिनोट करते हैं। तो अगर तो के की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी तो सूरत में तो ये रिएक्शन पहले से तेज़ होता जाएगा, और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि अगली जनरेशन में नंबर ऑफ बम्बारमेंट या चेन रिएक्शन कम होता जाएगा, तो ये के की वैल्यू 1 से कम आती जाएगी, और इस सूरत में ऐसा ऐसा फिशन प्रोसेस स्लो होता जाएगा और वो कुछ अरसे बाद बंद हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम के की वैल्यू को कांस्टेंट रखें और 1 के करीब करीब और 1 से थोड़ा ज़्यादा रखें। ये रिकमेंड किया जाता है किसी भी स्टेबल न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो है मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे इस पिक्चर में आप ये देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर कंट्रोल रॉड्स, इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जो है हमने रॉड लगाए होते हैं जो कि स्पीड को या के वैल्यू को, जिसकी अभी हमने बात की है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है स्टीम जनरेटर। ये आपको यहाँ स्टीम जनरेटर नज़र आ रहा है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है स्टीम जनरेटर को, और यहाँ पे जो है कंडेंसर से आने वाले फीड वाटर को हम गुजारते हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और उसको हम टरबाइन को देते हैं। स्टीम टरबाइन जो कि हर पावर प्लांट थर्मल न्यूक्लियर तमाम में वो होती है, जो स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। कंडेंसर, कंडेंसर आप थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, आपको उसका फंक्शन, उसकी हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। कूलिंग टावर, अल्टीमेटली कंडेंसर के साथ कूलिंग टावर होगा। तो ये जो है मेजर कंपोनेंट कहलाते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये एक छोटा सा स्केच है एक नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेन सेंट्रल पॉइंट नज़र आएगा जिसको हम कोर कहते हैं, रिएक्टर कोर। और इसी रिएक्टर कोर जो है के अंदर जो है हम ग्रेफाइट मॉड्यूलेटर होता है, बोरान कंट्रोल रॉड होते हैं, ये कंट्रोल रॉड अभी हमने बात की थी। और उसके बाद जो है फ्यूल एलिमेंट होंगे, ये छोटे छोटे येलो डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से जो है कंक्रीट की बनी हुई दीवार होगी, स्टील का बना हुआ जो है एक शेल होगा जिसे हम प्रेशर वेसल या रिएक्टर वेसल कहते हैं। इन तमाम के बारे में हम आगे ज़रा तफसील से बढ़ेंगे। और अगर इस फिगर को हम देखें जो कि एक बेसिक लेवल का स्केच है लेकिन ये ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन करता है, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के जो दरमियान में सबसे कोर चीज़ होती है उसको हम कोर ऑफ द रिएक्टर कहते हैं। उसके साथ जो है उसी के अंदर जो है कंट्रोल रॉड्स को हमने इंसर्ट किया होता है, और वो प्रोसेस की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी के वैल्यू को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर जो यहाँ येलो कलर की नज़र आ रही है ये ब्लैंकेट कहलाता है, लेकिन ये इस बात को आप जहन में रखें कि ये हर रिएक्टर में नहीं होता, कुछ ख़ास टाइप के रिएक्टर में होता है जो कि ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं, और जो जिनमें ब्लैंकेट नहीं होता उनको हम थर्मल रिएक्टर कहते हैं। तो इन दो लेयर्स के बाद तीसरी लेयर जो होती है वो रिफ्लेक्टर की होती है, उसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। हम आगे इसको पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका फंक्शन क्या है। इसके बाद जो है अगली लेयर
जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिखाई गई है दोनों तरफ, ये बेसिकली हर तरफ से होती है। ये थर्मल शील्ड है। इसके बाद जो है फिर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये पूरी एक लेयर सी, ये स्टील की बनी हुई पूरा ये एक कैबिन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्लेस होती हैं। इसको हम रिएक्टर वेसल कहते हैं। इस रिएक्टर वेसल के एक तरफ से पानी इन होता है या कूलेंट इन होता है, दूसरी तरफ से आउट होता है हीट अप होके, और इस पूरी रिएक्टर वेसल को हम शील्ड के अंदर रखते हैं जिसे हम न्यूक्लियर शील्ड कहते हैं, ताकि जो रेडिएशन है वो रिएक्टर के अंदर से अगर बाहर कुछ स्केप होती है तो इस शील्ड के ऊपर रुक जाए और इससे बाहर ना जाए। और फिर एक आखिरी लेयर यूज होती है कंटेनमेंट या कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग, जिसके अंदर ये पूरा पावर प्लांट होता है। Nuclear reactor is a system that contain and control sustained nuclear chain reaction. Reactors are used to generate electricity, moving aircraft carrier and submarine, producing medical isotopes of imaging and cancer treatment and for conducting research. तो न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ पावर जनरेशन के लिए या बम के लिए नहीं होते, बल्कि बहुत सारे और ऐसे फील्ड हैं जिनके अंदर वो यूज हो रहा है। सबमरीन जैसे या न्यूक्लियर बड़े बड़े जो शिप्स हैं नेवल, उनके अंदर यूज होता है ताकि वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो है वो काफ़ी अरसे तक समंदर में रह सकें। बहरहाल ये एक अलहदा बहस है, इसको हम आगे देखेंगे। इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जो बेसिक पार्ट हैं वो क्या हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, अब हम बारी बारी उन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इनर पार्ट हमने देखा था वो था कोर। तो जब हम कोर की बात करेंगे, इन ए थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर द कोर कंटेन द फ्यूल, द मॉडरेटर एंड ए कूलेंट। इन ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देयर इज नो मॉडरेटर, ओनली फ्यूल एंड कूलेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि अगर ब्रीडर रिएक्टर होंगे तो उनके अंदर जो है वो हम जो है मॉडरेटर भी नहीं रखेंगे। उसकी वजह मैं आगे चल के बताऊँगा। तो फ्यूल include the fissile isotope that, as explained earlier, is responsible for both the criticality of the reactor and the release of fission energy. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है। तो ज़्यादातर जो है वो U-235 यूज़ की जाती है एज ए फ्यूल। However, the fuel may also contain a larger amount of fertile material. Indeed, most of modern power reactors are fueled with uranium enriched to only a few percent of U-235, so that the most of the fuel is actually U-238. एक तो इस बात को क्लियर कर लें कि जो वर्ल्ड में नेचुरली हमको यूरेनियम मिलती है वो 0.7% जो है वो U-235 होती है और 93% के करीब जो है वो U-238 होती है। इसके अलावा कोई इंतहाई रेयर क्वालिटी जिसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, 2 से 4 पार्ट पर मिलियन, परसेंटेज उसकी काउंट आप खुद देख लें कि मिलियन में से अगर 2 हैं तो वो परसेंटेज क्या होगी। तो वो होता है U-232 जो कि बहुत रेयर है। तो नेचुरली ये 2 आइसोटोप यूरेनियम के पाए जाते हैं जिनमें से U-235 जो है वो नेचुरली फिशनेबल है, वो फिशन में हिस्सा लेता है, फिशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है, जबकि U-238 जो है वो फिशनेबल नहीं है, वो फिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें U-238 भी शामिल है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो डायरेक्टली तो फिशन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर इनके ऊपर जो है
न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट हो तो ये फिशन करने के बजाय अपनी जो है आइसोटोप्स को चेंज कर लेते हैं और ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो एलिमेंट जो हैं वो अगर फिशनेबल हैं, फिशन में हिस्सा ले सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम फर्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। और जो U-238 है वो भी एक फर्टाइल मटेरियल है, और जब इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये फिशन करके दो हिस्सों में टूटने के बजाय उल्टा एक न्यूट्रॉन को ऐड होने के बाद इसका इसका एटॉमिक वेट चेंज हो जाएगा और U-238 से जो है ये 239 बन जाएगा। और फिर इसके जो है आगे डिटेल प्रोसेस में ये 2-3 स्टेज से गुजरता हुआ प्लूटोनियम 239 बन जाएगा। प्लूटोनियम 239 जो है वो फिशनेबल है, यानी वो U-235 की तरह वो फिशन कर सकता है। इसलिए U-238 जो खुद फिशन नहीं करता लेकिन फिशन के लिए मटेरियल पैदा कर सकता है, तो उसको हम फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो ये फर्टाइल मटेरियल है। इसके अलावा और भी वर्ल्ड में कई फर्टाइल मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि थ्योरियम है जो कि TH-233 है, उसको कहलाते हैं। और इसी तरीके से जो है प्लूटोनियम है, उसके भी कुछ आइसोटोप्स हैं जो कि खुद फिशन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए उनको फर्टाइल मटेरियल हम कहते हैं। तो जो कोर है जिसके अंदर न्यूक्लियर हम एलिमेंट डालते हैं, वो जो है इसके साथ साथ उसी कोर के अंदर हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर। अब मॉडरेटर क्या होता है, इसको ज़रा हम देखेंगे। मॉडरेटर इज़ ओनली प्रेजेंट इन थर्मल रिएक्टर, इज़ यूज टू moderate mean to slow down the neutron from fission to thermal energy। तो इन जो न्यूट्रॉन हैं वो जब बहुत तेज़ स्पीड से जाते हैं से टकराएंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराएंगे तो वो फिशन कर सकेंगे, और अगर उनकी एनर्जी उस लेवल से थोड़ी कम होगी तो टकराने के बावजूद जो है फिशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे न्यूट्रॉन को हम थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन कहते हैं। मॉडरेटर का काम ही यही है कि न्यूट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो निकल रहे हैं उनमें से कुछ को वो स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो है फिशन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल रहता है। इसलिए मॉडरेटर को हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। इट वॉज प्रूवन दैट द न्यूक्लियाई विद लो मास नंबर आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस पर्पज, सो द मॉडरेटर इज ऑलवेज ए लो मास नंबर मटीरियल। तो मॉडरेटर जो है के तौर पे यानी ऐसे मटीरियल यूज़ किए जाते हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो करें, और रिसर्च से साबित हुआ है कि सिर्फ जो लो मास नंबर वाले मटेरियल हैं वही एज ए मॉडरेटर काम कर सकते हैं, वही न्यूट्रॉन को स्लो कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल जो है वो उनकी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि वाटर है, 2/3 ऑफ द एटम ऑफ विच आर हाइड्रोजन। तो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि दोनों में का मास नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, लो नंबर वाले हैं। इसलिए वाटर जो है एक अच्छा मॉडरेटर है। हैवी वाटर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा मास इसका ज़्यादा होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी है। ग्रेफाइट क्या है? द कॉमन फॉर्म ऑफ ए कार्बन। कार्बन की आपको जैसे पता है कि दो फॉर्म होती हैं एज ए एलिमेंट, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो डायमंड बहुत कीमती धात है इसलिए उसको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, ये एक सस्ता मटेरियल है। इसके बाद बेरिलियम एंड बेरिलियम ऑक्साइड आल्सो कैन बी यूज एज ए मॉडरेटर। वाइट सेरामिक मटेरियल, ये जो चाइना मिट्टी जिसे हम कहते हैं, चाइना मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, और इसी तरह इलेक्ट्रिक इंजीनियर के तौर पे आपने देखा होगा कि आइसोलेशन के लिए ये जो है
यूज़ होता है टावर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक टावर्स के ऊपर जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो है सिरामिक मटेरियल की प्लेट बनी हुई लगी होती हैं कंडक्टर्स के साथ। तो ये वही सिरामिक मटेरियल भी जो है यूज़ किया जा सकता है एज ए मॉडरेटर। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो कोर के अंदर ही पाई जाती है, दैट इज़ द कूलेंट। The coolant, as the name indicates, is used to remove the heat from the core and the other part of the reactor where heat may be produced. तो रिएक्टर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो रही होती है फिशन प्रोसेस की वजह से, तो उसको कूल डाउन करने के लिए और उस हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कूलेंट की ज़रूरत होती है। एक ऐसा मटेरियल जो न्यूक्लियर की जो है एनर्जी, हीट एनर्जी को दूसरी जगह जाकर ट्रांसफ़र करे और उससे हम स्टीम पैदा कर सकें। ये उसी तरह है जैसे हम एक एसी के अंदर की जो हीट है उसको हम आउटर ऑफ एसी के ज़रिए बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जो रिएक्टर है उसके अंदर की हीट को हम बाहर ट्रांसफ़र करते हैं। तो कूलेंट वो काम करता है जो इस हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। Water, heavy water, and various gases are the most commonly used coolant for the thermal reactor. In the case of water and heavy water, these coolants are so frequently serve as the moderator. जैसे अभी हमने पीछे moderator में भी वाटर और हैवी वाटर को पढ़ा है, तो अगर हम वाटर और हैवी वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ करेंगे तो इसका हमें डबल फ़ायदा होगा कि वो कूलेंट के तौर पे भी काम होगा करेगा और जो है वो हमें जो है मॉडरेटर के तौर का भी काम देगा, डबल काम करेगा। विद फास्ट रिएक्टर वाटर एंड हैवी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कूलेंट सिंस दीज मटेरियल वुड टेंड टू स्लो डाउन द फ्यूजन न्यूट्रॉन। तो आगे जाके जब हम टाइप ऑफ रिएक्टर में पढ़ेंगे तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो है हमें ज़रूरत होती है कि कोई भी न्यूट्रॉन स्लो डाउन ना हो, तो वहाँ पे हम कूलेंट के तौर पे भी वाटर को यूज़ नहीं करते या हैवी वाटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ही प्रॉपर्टी है स्लो डाउन करने की। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर मस्ट बी केप्ट एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल। मोस्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आर कूल्ड बाय लिक्विड सोडियम। इस वजह से वाटर या हैवी वाटर की जगह सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है एज ए कूलेंट। Sodium has an excellent heat transfer properties. With an atomic weight of 23, it is not effective in slowing down the neutron by elastic scattering. Gases can also be used to cool fast reactor. तो सोडियम क्योंकि एक कीमती धात है और एक्सपेंसिव हो जाता है उसको एज ए कूलेंट बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ करना, तो इसलिए बहुत सारे रिएक्टर में जो है गैसेस जो है वो एज ए अल्टरनेट के तौर पे यूज़ की जाती हैं। ब्लैंकेट कोर के अंदर जब हमने बात कर ली कि तीन चीज़ें थी, फ्यूल था, उसके अंदर मॉडरेटर था, उसके अंदर कूलेंट था, तो ये सारी चीज़ें इनर मोस्ट लेयर जो होती है जिसको हम कोर कहते हैं उसमें होती हैं। उसके बाद हमने याद हो तो आपको कहा है कि एक और लेयर होती है, एक वो है ब्लैंकेट। लेकिन ये ब्लैंकेट जो है वो नॉर्मल थर्मल रिएक्टर में नहीं होता लेकिन ब्रीडर रिएक्टर में होता है। तो आप देखते हैं कि ये क्या है और क्यों है। सराउंडिंग द कोर ऑफ ए ब्रीडर रिएक्टर इज ए रीजन ऑफ ए फर्टाइल मटेरियल कॉल्ड ब्लैंकेट। फर्टाइल मटेरियल की अभी मैंने बताया था कि वो मटेरियल होते हैं जो कि खुद तो फिशन नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे मटेरियल में जो कि फिशन में हिस्सा ले सकता है। तो ऐसे मटेरियल की जो है लेयर बिछा दी जाती है सराउंडिंग में कोर के इन ब्रीडर रिएक्टर।
This region is designed specifically for conversion or breeding. Neutrons that escape from the core are intercepted in the blanket and enter into the various conversion reactions. वही बात जो मैंने कही कि वो कन्वर्जन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जिससे मटेरियल कन्वर्ट होते रहते हैं. However, a substantial amount of power may also be produced in the blanket as the result of fission induced by the fast neutron. तो जो एटम कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टाइल मटेरियल से फिशनेबल मटेरियल में, तो उनके ऊपर फिर अगर कोई न्यूट्रॉन आकर टकराएगा तो वो फिशन प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो जाएगा. तो इसलिए स्मॉल अमाउंट में फिशन प्रोसेस ब्लैंकेट के अंदर भी हो रहा होता है. सो इट मस्ट बी कूल्ड एज वेल एज द कोर. तो जिस तरह कोर को हम कूलेंट के ज़रिए ठंडा करते हैं, उसके अंदर पानी या सोडियम या गैसेस की सर्कुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम जो है सर्कुलेट करते हैं गैसेस को. द रीजन एडजेसेंट टू द कोर और टू द ब्लैंकेट इफ वन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टर. तो जो ब्लैंकेट के बाद अगली लेयर है वो कहलाती है रिफ्लेक्टर की. दिस is a thickness of moderating material by placing a region of moderator around reactor. However, some of these neutrons are returned to the core or blanket after one or more collision. तो होता ये है कि कोर अगर अकेला है थर्मल रिएक्टर में या कोर के साथ ब्लैंकेट भी मौजूद है, दोनों सूरत में इनके बाद जो है एक लेयर थिक लेयर बिछाई जाती है मॉडरेटिंग मटेरियल की. मॉडरेटिंग मटेरियल का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इसमें ग्रेफाइट है, इसमें वाटर हैवी वाटर है, इसमें बेरिलियम ऑक्साइड है, इसमें सिरेमिक मटेरियल है. ये सारे जो हैं मटेरियल, इनमें से कोई भी यूज़ किया जा सकता है एज ए मॉडरेटर. उन्हीं की एक लेयर जो है वो उसके ज़रिए इस पूरे रिएक्टर को कवर कर दिया जाता है, कोर को और ब्लैंकेट को, और ये कहलाता है रिफ्लेक्टर. और इसका पर्पज़ ये है कि न्यूट्रॉन अगर जो है वो कुछ इस्केप हुए हैं कोर से ब्लैंकेट में या ब्लैंकेट से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं और रेडिएशन बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये रिफ्लेक्टर उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिससे वो दोबारा कोर की तरफ टर्न हो जाते हैं. तो 90 से 95% जो है वो न्यूट्रॉन जो है मॉडरेटर की वजह से वापस चले जाते हैं, और कुछ अमाउंट जो है फिर भी इनमें से जो है पास होके बाहर निकल आती है. तो इस तरीके से जो है हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं. अब हम बात करेंगे कंट्रोल रॉड की. जैसे कि हमने पिक्चर में आपको दिखाया था कि कंट्रोल रॉड कोर के अंदर रॉड की शक्ल में होते हैं, और ये जो है स्पीड ऑफ प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम आते हैं. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कंट्रोल रॉड्स क्या हैं. कंट्रोल रॉड्स आर ए मूवेबल पीस ऑफ न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग मटेरियल. दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द रिएक्टर. सिंस दे अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, एनी मूवमेंट ऑफ द रॉड्स affect the multiplication factor of the system. Withdrawal of the rod increases the K, whereas insertion decrease the K. तो अगर आप कंट्रोल रॉड को कोर के अंदर ऐड करेंगे, अगर आप कंट्रोल रॉड को वो कर देंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो वो जो है प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश करेगा. जितने ज़्यादा कंट्रोल रॉड कोर के अंदर होगा उतने ही वो ब्लॉक करेगा न्यूट्रॉन और प्रोसेस स्लो हो जाएगा. और जैसे जैसे हम जो है उसको ऊपर की तरफ उसके कोर के अंदर तो कोर से बाहर निकालेंगे कंट्रोल रॉड को, तो न्यूट्रॉन को फ्री वे मिलेगा और वो ज़्यादा स्पीड से जो है रिएक्शन में हिस्सा ले सकेंगे. Thus, the reactor can be started up or shut down or its power out
output can be changed by the appropriate motion of rods. तो इन रॉड्स की मूवमेंट अप एंड डाउन की मदद से हम प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, या हम उसको जो है शट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर कंप्लीटली डाउन कर सकते हैं। और इसी तरह जब स्टार्ट करना हो तो स्टार्टअप प्रोसेस में हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल रॉड जो है रिएक्टर के प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम आते हैं। कंट्रोल रॉड मस्ट आल्सो बी एडजस्टेड टू कीप ए रिएक्टर क्रिटिकल and operating at a specific power level. When in the course of time the fuel is consumed and the various neutron absorbing fission products accumulate in the reactor. Several materials have been used for the control rod. Boron steel, since boron has a high neutron absorption cross section. Hafnium or cadmium, metallic element that are strong thermal neutron absorber. Silver and various alloy of these metals. The rods may be cylindrical in shape or may be sheets, blades or cross blades, which are called siphon rods. The last layer is a reactor vessel and shields. Various reactor components just described are all located within the reactor vessel, which if components are under pressure is also called the pressure vessel. तो जो इस पूरे सिस्टम को अपने अंदर कंटेन की होती है, वो जो कंटेनर कह लें, वो जो आप वेसल कह लें, जिसके अंदर या सिलेंडर कह लें, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हम रिएक्टर वेसल कहते हैं। लेकिन अगर इस रिएक्टर वेसल को बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर यूज़ किया जा रहा हो, जो कि मुख्तलिफ रिएक्टर में किया जाता है, तो वो प्रेशर वेसल कहलाती है। To reduce the thermal stresses in the reactor vessel caused by the absorption of gamma rays coming from the core, it is necessary in some reactor to place a thermal shield, a thick layer of gamma rays absorbing material, which is normally iron or steel, between the refractor and inner wall of the vessel. तो vessel और जो हमारा मॉडरेटिंग मटेरियल था, उसके दरमियान जो है हमने जो है रिफ्लेक्टर लेयर और वेसल लेयर के दरमियान जो है हमने एक कवर, एक लेयर डालनी है स्टील की, जिसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं थर्मल शील्ड। तो जितनी गैमा रेज खारिज हो रही होती हैं कोर में से, अगर वो जाके रिएक्टर वेसल पे टकराएंगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और वो उस मेटल के हीट अप होने से उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो उसको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए ये थर्मल शील्ड यूज़ की जाती हैं। The reactor vessel and all other components of the nuclear steam supply system that contain sources of radiation are surrounded by radiation shielding in varying amount of for the protection of plant personnel during normal operation of the reactor. The amount of shielding varies according to the design of the reactor. तो जो न्यूक्लियर वेसल के बाहर एक शील्ड मैंने आपको दिखाई थी फिगर में, वो जो है वो बेसिकली जो है रेडिएशन शील्ड है, जिसके ज़रिए जो है हम रिएक्टर से आने वाली एनी रेडिएशन को जो है ब्लॉक करते हैं, ताकि जो पर्सनल हैं, जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो जो है इस रेडिएशन से महफूज रहें और उनकी हेल्थ के इश्यूज ना आए। आज हम यहाँ तक ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और बाकी टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो पहला लेक्चर हमारा आज का यहीं पे एंड होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप
मेरे से कर सकते हैं। हम अब जो है इसी टीम सॉफ्टवेयर के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप सेंड करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा।